wonderful word that we could hear. परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमने बहुत अच्छा वचन सुना है आज। I was encouraged मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला by the words of faith that we heard. जो विश्वास का वचन जो हमने सुना है। See, I was just thinking that many times that God enables us to believe His promises. बहुत बार परमेश्वर हमको मदद करता है कि हम उनके वचन पर, उनके वादों पर विश्वास करें। And we are happy and excited about His promises. और हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं उनके वादे सुनकर। But when difficulties come our way, लेकिन जब कोई परेशानी, कठिनाई आती है, that time the promises suddenly disappear. उस समय ये वादा हमारे आंखों के सामने से हट जाता है। We heard about Abraham, but God gave him a promise, but he went through so many difficulties. जैसे हमने अब्राहम के बारे में सुना, उसको जैसे वादा मिला है और वो कैसे परेशानियों के सामने से गया। I was listening to one message of a godly brother. मैं एक वचन सुन रहा था एक भाई से, where in that particular situation, he remembered that God's promise was true. और उसका एक घटना था जिसमें उसने ये देखा कि परमेश्वर का वादा कैसे सत्य है। He went through some difficulty, but he says that because of that promise, I was okay because God helped me. वो किसी परेशानी से जा रहा था, लेकिन जो परमेश्वर का वायदा था वो देखकर उसको वो उस परेशानी से गुजरा अच्छे से। And it was the very same promise which I used to believe. और ये वो वादा है जिसमें मैंने भी विश्वास किया है। This promise is like this: 2 Chronicles chapter 16 verse 9. ये दूसरा इतिहास से है। 2 Chronicles 16 verse 9. 16 अध्याय और 9वां वचन। It says, "For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose hearts are completely His." यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाता है। So this promise, was a real blessing for me. I said, if my heart is totally for Him, then He will support. He will, throughout this earth, He will look with His eyes upon me. तो परमेश्वर का वादा ये बहुत सत्य है मेरे लिए कि जो परमेश्वर है वो अपने आंखों से मेरी तरफ देखते हैं। But when I go through some difficulty, or when I was in some difficulty, और जब मैं किसी परेशानी में हूँ, I didn't start thinking about this verse. मैं ये वादे के बारे में सोचने लग जाता हूँ। Other times when everything is well, I am very confident about this verse. बाकी समय जब सब अच्छा चल रहा होता है, तब ये वादे से मैं एकदम उत्साहित हो जाता हूँ। So that brothers sharing helped me to remember. I have to remember this promise in my difficulty. तो वो भाई का वचन ऐसे सुन के मुझे ये समझ में आया कि जब मैं परेशानी में हूँ, तब मुझे ये वादे पर विश्वास करना है। God's promises are there not only for some good times, but for all times. परमेश्वर का वादा सिर्फ अपने अच्छे समय के लिए नहीं है, मुश्किल समय के लिए भी है। So I was encouraged even today when Kiran shared that to trust God in difficult times. आज भी किरण भाई ने जैसे बांटा, मुझे प्रोत्साहन मिला कैसे हम परमेश्वर पर विश्वास करें अपने मुश्किल समय में। He's our Father who cares for every detail of our life. वो एक पिता है जो हमारे हर एक चीज पे वो चिंता करता है। Nothing will happen without His permission. और ऐसा कुछ भी नहीं होगा बिना उनके आज्ञा के। And so just as we are confident in good times, we need to be confident in Him in difficult times. और जैसे हम अच्छे समय में उन पर विश्वास करते हैं, उसी तरह अपने मुश्किल समय में भी उन पर विश्वास करना है। So I was really encouraged. So ये एक चीज मुझे बहुत प्रोत्साहन किया। We heard that He is able to save us from stumbling. हमने ये सुना कि वो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। So today we may be falling into some sin. आज हम किसी पाप में ठोकर खा रहे होंगे, but God wants us to come to a life where we are always, we are walking and we are running. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम ऐसी जिंदगी में आए जहाँ पर हमेशा हम भाग रहे हैं। Maybe today we are repeatedly falling.
शायद आज के दिन आप ठोकर खा रहे हो, maybe in the way we speak to others. शायद आप जैसे बात करते हो दूसरे उसमें, Every time we speak, somebody is hurt. जब भी आप बोलते हो तभी कोई और को परेशानी होती है। That is one area where we all need help. और ये रास्ता है, ये एक जगह है जहाँ पर हम सबको मदद चाहिए। The Bible says the tongue of the wise brings healing. बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो बुद्धिमान का जीभ है वो हीलिंग लाता है। So all of us, God wants the words of Jesus always brought healing. तो पर यीशु मसीह का जो वचन था वो हमेशा चंगाई लाता था। When he spoke, he did not hurt this person and that person and this person. जब यीशु मसीह बात करते तभी वो किसी को परेशानी नहीं होता था उस वचन से। There were people who were saying gracious words was coming out from his lips. ऐसा लोग बोल रहे थे कि परमेश्वर यीशु मसीह के मुंह से कितना अनुग्रहकारी वचन निकल रहा है। Brothers and sisters, do you want gracious words to come out from your lips? भाई और बहनों, क्या आप चाहते हो आपकी जीभ से ऐसा अनुग्रहकारी वचन निकले And bless everyone whom you meet? और आप जिससे भी बात करते हो वो उसको आशीष करे? Today it may not be so, आज ऐसा नहीं हो रहा है but शायद, have faith like Abraham that it will be so. लेकिन ये विश्वास रखो जैसे अब्राहम ने रखा था कि ऐसा होगा एक दिन, That you will bring words of healing to people. कि आप ऐसा वचन बोलो जो दूसरों को चंगाई दे। It's a wonderful life when we do that. ये एक बहुत अद्भुत जीवन है जीना। When we hurt others, it's not a good life. जब हमारे वचन किसी को परेशान करते हैं तब वो अच्छा नहीं है। If we hurt our husband or wife or our children, हमें it's not a good thing. किसी को अपने पति को, अपने बच्चों को परेशानी होती है। And if we hurt our brothers and sisters or our neighbors, हमारे भाई बहन को या हर्ट करते हैं या हमारे पड़ोसी को हर्ट करते हैं। but this is God's promises for all of us that we will be able to be gracious as Jesus is gracious. लेकिन परमेश्वर का ये वचन हम सबके लिए है कि जैसे यीशु मसीह का वचन अनुग्रहकारी था वैसे हमारा भी वचन अनुग्रहकारी हो। Colossians chapter, we'll read Colossians chapter 4 verse 6. हम कोलोशियन चैप्टर 4 वर्स 6 में देखते हैं। It says, let your speech always be with grace, seasoned as it were with salt, so that you may know how you should respond to each person. कोलोशियो 4 का 6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। Brothers and sisters, I want to tell you, I was a person who used to hurt people like anything. भाइयों बहनों, मैं तुमसे सच कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा एक व्यक्ति था जिसका वचन की वजह से दूसरों को परेशानियां होता था। Anything I will not raise my voice, but anything I say would hurt somebody. मैं ऐसा जोर से नहीं बोलता था, लेकिन कुछ चीज जो है मैं बोलता था तब वो किसी को लग जाता था। But I would hurt my wife so many times by the words I say. मैं अपनी पत्नी को ऐसा हर्ट करता था कभी-कभी जब मैं ऐसा शब्द बोलता था। I would not raise my voice. I would say it in a very quiet way. मैं ऐसा चिल्ला के नहीं बोलता था, मैं धीरे से ही बोलता था। But from her face, I know that she is hurt. लेकिन उनके मुख से पता चल जाता था कि उनको बुरा लगा है। This verse challenged me. ये वचन ने मुझे बहुत चैलेंज किया। And God has changed my life. और परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया है। He's changing my life. वो अभी भी बदल रहे हैं। I only want to speak gracious words. मुझे अभी आ रहा है कि मैं कैसे अनुग्रह सहित वचन बोलूं। I want to speak words where people are encouraged and lifted up. मुझे ऐसा वचन बोलना है जिसमें लोगों को और आगे बढ़े। And God is able to do that. और परमेश्वर ये कर सकते हैं। He has done that. I can feel it in my life. वो कर रहे हैं और मैं ये देख सकता हूँ मेरे जीवन There is में। still a long way to go. अभी बहुत आगे भी जाना है, But I am looking forward to speak like Jesus. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे और यीशु मसीह के जैसा कैसा You know देखूं। what the words of Jesus was? आपको पता है यीशु मसीह कैसे बात करते थे? Do not fear. घबराओ मत, Take courage. धैर्य रखो। These are the heavenly languages. ये सब जो है स्वर्गीय भाषा है। The angels, when they come down, they say the same thing. Do not fear. Take courage. Like, जब स्वर्गदूत नीचे आते हैं तभी वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि तुम डरो मत, धैर्य रखो। so, brothers and sisters, we have got a God who is able to keep us from stumbling.
तो भाई और बहनों, हमारे पास ऐसा एक परमेश्वर है जो हमें ठोकर खाने से बचा He सकते is हैं। able to make us walk and run in this life. वो हमें चलाना और दौड़ना भी सिखा सकते हैं। ये वचन सुनने के बाद हम सभी को हमको आशा लगता है After hearing these words, we all have received the hope परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है। that God has saved us. हम किस परिस्थिति में है, किस कंडीशन में है, उसके लिए आशा है। परमेश्वर को जब हम देखेंगे तो परमेश्वर होप है हमारे लिए। Whatever condition you are in, there is hope. God has given you that hope. मैं सोच रहा था कि अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा टाइम तक क्यों वेट किया कि वो अब्राहम का शरीर निर्बल था और सारा का भी शरीर निर्बल हो गया। इतना होने तक परमेश्वर ने क्यों वेट किया रहेगा? I was wondering why God waited until Abraham and Sarah's body were completely dead. तो परमेश्वर वही सिखाना चाहता कि अब्राहम, इवन तुम्हारा परिस्थिति कैसा भी हो, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, मैं देखो मैं क्या काम करता हूँ। So God wanted to teach Abraham, whatever your condition may be, I need you to believe in me. एक वचन मेरे मन में आया, There's one verse that came into my mind. रोमन्स चैप्टर 9, रोमियो का किताब 9वां वचन। रोमियो 9 उसका 30 में लिखा है, In Romans chapter 9 verse 30, हम क्या कहे ये कि अन्य जाति जो धार्मिकता का खोज नहीं करते धार्मिकता प्राप्त की है, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। what shall we say then, that Gentiles who did not pursue righteousness attended righteousness, even the righteousness which is by faith? यहाँ पर विश्वासी के बारे में नहीं, लेकिन अन्य जाति जो परमेश्वर को जानता नहीं, बट उसने लिखा है कि परमेश्वर का धार्मिकता उसने प्राप्त किया। Here it is written about a Gentile person who has received the righteousness. और लिखा है कि विश्वास के द्वारा उसने प्राप्त किया। And it is written that by faith he has received that अगर righteousness. हम आगे बढ़ेंगे दो कैटेगरी के बारे में बता रहे, एक तो विश्वासी, एक अविश्वासी जो परमेश्वर के वचन को जानता है। If we read forward, it is they have mentioned two categories of Gentiles and a believer. अब 31 में लिखा है, परंतु इज़राइल जो परमेश्वर के जन है, जो जो धर्म की व्यवस्था को खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। Verse 31, but Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at that law. यहाँ पर लिखा है कि वो लोग ट्राई किए बट नहीं पहुंचे, लेकिन क्यों, रीजन क्या है? It's written that even after pursuing that they did not arrive. What is the reason? सिंपल है कि विश्वास नहीं किया परमेश्वर पर। It's simple that they did not believe, they did not have उन्होंने faith. विश्वास नहीं किया। They did not had faith on Jesus. लिखा है कि इसलिए कि विश्वास से नहीं परंतु मानो कामों के द्वारा या कर्मों के द्वारा खोज करते थे। Why? Because in 32 it's written, because they did not pursue it by faith, but as though it by works. और वचन में आगे लिखा है कि जो विश्वास से अगर नहीं चलते, विश्वास से परमेश्वर का धार्मिकता खोज नहीं करते, लिखा है कि उसके लिए ठोकर का कारण वो गिर जाएगा। And more ahead, it's written that who do not believe, who do not walk by faith, they will be stumbled. 32 में लिखा है वचन में। It's written in 32. And और लेकिन जो परमेश्वर पर आशा रखता है, but who believes, जो परमेश्वर विश्वास करता है, वो लज्जित ना होगा। who believes in God, they will arrive. कितना आनंद की बात है। This is such a great thing. तो परमेश्वर चाहता है कि हमको विश्वास के द्वारा हमको चलना चाहिए। परमेश्वर जो प्रॉमिस के हम पे विश्वास रखे। This is what God wants. He wants us to walk by faith. परिस्थिति को मत देखो, Don't look at your condition. परिस्थिति को देखेगा हम डर जाएंगे, If you look at the condition, you will get scared. लेकिन परमेश्वर को देखो। Look at God. हम कभी हम इधर देखते हैं, मेरे पर विश्वास नहीं है। Many times we look at down and on a condition and परमेश्वर think चाहते that we do not have faith. परमेश्वर चाहते हैं कि मुझको देखे। But God wants us to look at Him. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ Lord, we believe कि आप मुझे वो विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता आएगा वो मुझे देगा। that you will give me the righteousness through faith. ये कितना वंडरफुल लाइफ है मेरे प्रिय भाइयों। This is such a wonderful life, dear और हम brothers and देखते हैं कि sisters. ये एक गॉस्पेल है जो विश्वास के द्वारा, ना कि कर्म के द्वारा। Now we see that this is a gospel which is by faith and not by works. पता है क्यों? And you know why? क्योंकि हम घमंड ना करें। ताकि so that we do not become proud. सब कुछ परमेश्वर की ओर से, Everything is through God. परमेश्वर के लिए।
and everything is for हमको God. ये याद रखना चाहिए, सब कुछ जो निकलता है परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर को देना चाहिए हमको। And we should remember that everything that comes out is through God and to God and for God. आमीन। Amen. भाई किरण के द्वारा बहुत उत्तेजन देने वाले वचन प्रभु हमसे बात किया आज। We heard a very encouraging message from Brother Kiran. परमेश्वर हमें गिरने से बचाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर के पास। God has the power of exempting us from falling. आपको पता है पौलुस के शरीर के अंदर एक कांटा रखा गया है। We have seen that Paul has a thorn, और ये उद्धार पाने के बाद पौलुस के शरीर के अंदर एक कांटा रखा गया है। and after he was saved, this thorn was given to Paul. इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जो कांटा मेरे शरीर में रखा है वो तकलीफ हो रही है, निकाल दो। And he prayed that God, this thorn is very, it's stopping me and it's troubling me. Please remove this thorn. और वो 3 बार प्रार्थना किया कि प्रभु ये जो कांटा मेरे शरीर के अंदर रखा है उसको निकाल दो करके 3 बार वो प्रार्थना करने लगा। He prayed it 3 times that asking God to remove it. नया जन्म होने के बावजूद भी अगर उसके शरीर में कुछ तकलीफ हो रहा है तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस नया जन्म तो पाया हूं लेकिन मेरा शरीर नहीं चाहता है कि मेरा शरीर में कांटा रहे। Even after being born again, he had still this thorn in his body. And he prayed that God, I don't want this thorn in my body. जैसे कि आप नया जन्म पाने के बावजूद भी अभी भी हमारे पास वो शरीर है जो एडम के पास है। Even like all of us, after being born again, we still have the body that Adam had. और ये शरीर में ऐसा कांटा रखना हम पसंद नहीं करते हैं। And a thorn being in our body, we do not like that. जैसे कि पौलुस के शरीर के अंदर कांटा रखा गया है, शायद आपका शरीर में ऐसा कांटा होगा, कोई आपको कुछ बोला होगा वो तुरंत उल्टा जवाब दे देंगे। So there may be a thorn in your life, in your body, like it was in Paul, like you would have said something, somebody would have said something and you would have hurt. कोई अपमान किया आपको, तुरंत आप भी उसको अपमान कर देगा। Somebody would have hurt you and then you hurt him again. कोई आर्थिक परिस्थिति आया होगा तो प्रभु के ऊपर तुरंत ब्लेम कर देगा, क्यों आपने तुरंत मेरा इस परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं निकाला आपने। You may have some financial difficulty and you quickly you ask God and question him why you are giving me this difficulty. ब्रदर्स एंड हमारे पास वो शरीर है, अभी भी वही शरीर है जो एडम के पास था। Brothers and sisters, we still have the same body that Adam had. और ये शरीर नहीं चाहती है कि कोई अपजय की बात हमारे जीवन में रहे। And this body doesn't want anything wrong in us. और कोई अपने को अपमानित करे, And to anybody hurt us. कोई आपको दूषित करे, And to pollute us. और ये शरीर बिल्कुल नहीं चाहती है, पसंद नहीं करती है। The body does not like it. इसीलिए कई बार कुछ भाई लोग बोलते हैं हमारा मुंह तुरंत चला लेते हैं हम लोग। That's why some brothers and sisters may say something and we are so quick to respond it. So एक वचन है भजन संहिता 37, So there's one verse in Psalms 37. 23-24 बहुत प्रोत्साहन देगी आपको। Psalms 37, 23 and 24. So वहां पर लिखा है कि ब्रदर किरण कैन यू रीड Psalms 37 verse 23 और 24। The steps of a man are established by the Lord, and he delights in his way. When he falls, he will not be hurried headlong, because the Lord is the one who holds his hand. मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलने से वो प्रसन्न रहता है। याद रखिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर बेटे हर एक भाई बहन की जो गति है उसकी जीवन की हर एक लंबी मार्ग परमेश्वर ने रूप किया गया है। It's written that any brother and sisters who has fallen, God has already made their way. समझो उस मार्ग में 1000 कदम है, And imagine that there are 1000 steps in that way. लेकिन आप उस मार्ग में चलते चलते समय कब गिरेगा आपको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है एक ना एक दिन गिरेगा उस रास्ते पे। You don't know when you will fall in that way, but God knows when exactly you will fall. फिर भी परमेश्वर को मार्ग पसंद है, But still God wants that way. क्योंकि वो मार्ग तैयार किया किसने है?
and who has prepared that way? आपकी मार्ग और मेरी मार्ग, हम सबकी मार्ग प्रभु ने तैयार किया है। Your way and my way, all of our ways have been prepared by God. और आपके लिए योजना, मेरे लिए योजना प्रभु ने जगत की नींव डालने से पहले डाले गया है। Plan for you and plan for me, for plan for the world, God has planned it all. वचन में लिखा है कि प्रभु को बहुत पसंद है वो। And the word says that God loves, God delights in it. इवन प्रभु जानते हैं उस मार्ग में आप गिरने वाले हो, And God knows that you will fall in this फिर भी प्रभु को वो way. योजना बहुत पसंद है। But still God delights in that way. 24 में लिखा है कि अगर वो गिर भी गया, And it's written in 24, even when he falls, बी पार्ट में लिखा है कौन उसको उठाने वाला है। who will raise him up? 24 पढ़ में। चाहे वो गिरे भी पड़ा न रह जाएगा, यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यहाँ पर लिखा है कि अगर वो 1000 कदम में से कुछ कदम चलते चलते गिर भी गया, वहां पर उठाने वाला कौन है। It's written that even after walking for some steps and then falling, who will raise him up? सो कई बार हम इंतजार करते हैं कि मैं गिर गए तो कोई ब्रदर आके उठाना चाहिए, कोई पास्टर आके उठाना चाहिए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आके हमको उठाना चाहिए। We expect that if we fall, some brother will come, some elder will come, some good person, some older person will come and help us. तो हमारा नजर हमेशा धरती की ओर लगाते रहते हैं। Our eyes are always fixed on the earth, on the ground. तो ये वचन में लिखा है कि कौन उठाने वाला है हमें, परमेश्वर हमें ऊंचा। But it's written, who will hold us and who will pick us up? यहोवा उठाने वाला है। The Lord God will hold you. कैसे उठाएगा। And how will he hold you? उसके हाथ पकड़कर उठाने वाला He है। will hold you by his hand. और आखिरी में लिखा है कि इसीलिए वो, And it's written in the end, that's why, आखिरी वचन 24, because the Lord is the one who holds his hand. चाहे वो गिरे वो भी पड़ा न रह जाएगा। वहां पर लिखा है कि जो गिरा हुआ परिस्थिति में आप वहीं पर नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, आपका हाथ उठाकर चलाता है। It's written that even when he falls, he will not be stuck on that position. He will be raised by the Lord. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। Brothers and sisters, I want to encourage you that Lord has done so many things for you. छोटी सी प्रार्थना, आपकी बच्चे के बीमार हो गया, 2 दिन देरी कर दिया, क्या नुकसान है आपका। If your child has been sick and if it delays, if his healing is delayed by उसने 2-3 क्रूस पर days, को मरकर आपके पापों से मुक्ति दिलवा दिया और आपका उद्धार कर लिया, आपको स्वर्गीय वारिस बना दिया, इतना सब कुछ कर दिया, सिर्फ छोटी सी प्रार्थना नहीं किया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। he was crucified, he died for your sins, he saved you from the eternal destruction, but he did not, he delayed in healing for 2 days. Then what is the big thing? आपके घर में ऐसा कठिन, बहुत कठिन हस्बैंड है या बहुत कठिन वाइफ है, अगर वो नहीं बदल रहे तो क्या फर्क पड़ेगा। परमेश्वर इतना सब कुछ कर दिया, आपका पति को तोड़ा, खड़क बनाया, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। If you have a difficult wife, if you have a difficult husband, what does it matter? God has saved you. God has done so many things for you. ये वो लाखों करोड़ों का कर्ज चुका दिया आपको क्रूस पर मरकर, एक 10,000 रुपए का कर्जा, धरती की कर्जा नहीं चुकाया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। He has paid such a big price on the cross. If he has not paid a price right now, तो on परमेश्वर this कहता earth, है कि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करने के लिए देरी करते ताकि हम उसकी ओर ताकते रहे, देखते रहे। so God wants us to wait on God and to look on Him. और डेविड एक वचन भजन संहिता साम्स में लिखा है, In Psalms it's written, 40 chapter 40। chapter 40. सो डेविड की एक ये हम सबका अनुभव जरूर होगा। 40 verse 2, And this may be our experience also. Chapter 40, verse 2. He brought me up out of the pit of destruction, out of the miry clay, and he set my feet upon a rock, making my footsteps firm. उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल में से उठाया और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दूर किया है। प्रभु यीशु ने हमको उस कीचड़ से उठाकर अभी कहाँ रखा है, एक चट्टान पर रखा है। God has picked us up from that pit, and where he has kept, ये he has दाऊद kept के on a अनुभव है, mountain. ये दाऊद के अनुभव है। And this is the experience of David. तो आज हम भी ये अनुभव हम अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारा एक समय हमारा हालत किस तरह का थे, आज परमेश्वर ने हमको कितना ऊंचे उठाया। So we also may have this experience that where we were and how much high God has picked us up. तो मुझे लगता है कि परमेश्वर हम सबको एक चट्टान पर रखा गया है।
And I know that God has picked us all up and kept us एक in समय में the आप किसी को mountain. भी नहीं बोलते थे यीशु के बारे में, लेकिन आज आप ये यीशु के बारे में किसी और को बोल रहे। There was once a time that you would never speak about Jesus, but now you are speaking about Jesus. एक समय में आप अकेला चर्च में आना चाहता था, अब जब आप चर्च में आते समय और 2 लोगों को लेके आ रहे हैं। Once a time you would come alone to church, but now you are bringing 2 other people with you. एक समय आप अकेला आपके लिए सोचता था, अभी आप दूसरों के लिए सोचने लगा। There was once time that you were thinking about yourself, but now you are thinking about others. परमेश्वर आपको एक चट्टान पर खड़ा किया है। God has made you step on a rock. तो डेविड का अनुभव वही है कि अभी हमको कीचड़ से उठाकर हमें एक चट्टान पर रखा है। And like David, God has also picked us up from the pit and has set up on the rock. सो इन सारी परिस्थितियों में कौन हम सामर्थ्य रखते हैं हमें ऊंचे उठाने के लिए? And who has the power in all these conditions? And परमेश्वर, God, यीशु। Jesus. ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है परमेश्वर आपको नहीं छुड़ा सकते हैं। And there is no way, there is no pit that God cannot pick you up from. हमारा आंख प्रभु के ऊपर लगाएंगे। Let's look to Lord. प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते। प्रभु यीशु इतना भला है और इतना महान है, सामर्थ्यवान परमेश्वर। मैं मेरी बेटी के घर आई रात कल दोपहर को, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नजीक पड़ेगा करके मैं आई। तो नाला सुपारा में मेरी बड़ी बेटी रहती है, तो उसके घर में देखी तो उसका टेस्ट करने गई थी। मैं बोली क्या हुआ, मुझे डरते कुछ बीमार होते तो बोलती उसका रिपोर्ट आया क्या खून कम है उसके बदन में। और मैं कुछ नहीं बोली, प्रार्थना की और सब काम हो गया उसका, तो बातें करने लगी। तो मेरा दामाद काम से ऑफिस से आया, खाना पीना खाया और बेडरूम में सोने गया। तो उसके नाक से इतना खून भर रहा था। तो मेरी बेटी गई उसके बाजू में सोने गई बेटी बड़ी, तो बोलती है अपने आदमी को देखते है तो रुमाल उतार के देखी तो पूरा रुमाल खून से भर गया। तो मैं बोली अभी रात को इतना 12:30 बज गया, 12 बजा। मैं बोली रुक तू डरना मत। तो मेरी बेटी बोलती है मम्मी पहले प्रे कर। तो मैं बोली वो कपड़ा पहनने लगी, बोलती है नहीं डॉक्टर के पास। मैं बोली अभी कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, जरा रुको, परमेश्वर जीवित है, वो सब कुछ करेगा। मैंने बोली अभी उसको जरा राई का तेल गरम करो, उसको अजवाइन डाल के ये अपना लहसुन और बोली थोड़ा मालिश करो। मैं दूध गरम की, उसमें हल्दी डाल के दी पीने को उसको, और उसको मैं बोली प्रार्थना की और वो सो गया। और परमेश्वर का इतना धन्यवाद। और परमेश्वर ने मेरी बेटी इतनी डर गई थी, घर में बच्चे लोग बहुत डर गए थे रात को, लेकिन परमेश्वर जीवित है। उसने मेरे दामाद को बहुत मुसीबत से तकलीफ से निकाला, लेकिन उन लोग की आंखें खोलेगा प्रभु, मुझे विश्वास है। प्रभु का धन्यवाद। और एक मैं धन्यवाद करती है कि मुझे इतना अच्छा चर्च मिला, खास करके हमारे मैथुर ब्रदर इतने अच्छे हैं। मुझे इतनी तकलीफ में थी, आई थी बहुत टेंशन में, किसको बताओ किसको नहीं बताओ। तो ब्रदर को मेरा दिल हुआ बताने को। मेरे घर में मेरे बच्चे लोग को बहुत परेशानी है ब्रदर। तो ब्रदर ने प्रार्थना वहां पे किया, फिर मैं जोजफ ब्रदर को बोली, फिर मैंने विजय ब्रदर को बोली, और वो लोग ने सोमवार का प्रार्थना में मेरा बेटे को घर के लिए प्रार्थना किया। इसलिए इन लोग का सच्ची इतने परमेश्वर ने अद्भुत इधर एंजल रखे हैं। तो जो भी प्रार्थना होती है तो परमेश्वर सुनता है। मेरा बेटे को घर भी नहीं था, भाड़े से मिल रहा था, तो तुरंत घर का बोली तो घर भी तुरंत मिला। मेरा बेटा भी वो भी चमत्कार में पड़ गई, घर भी मिला। मैं बोली प्रार्थना में इनकी इतनी सामर्थ्य रहती है, एक गट्ठा अगर सब लोग प्रार्थना करते हैं तो। और सच्ची परमेश्वर ने प्रार्थना किया, जोजफ ब्रदर ने प्रार्थना किया वो घर के लिए, विजय ब्रदर, हमारे महतो ब्रदर, किरण ब्रदर, सब भाई इतने उत्साही है परमेश्वर के दास। तो इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और उनका भी मैं धन्यवाद करते हैं। सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत धन्यवाद। खास अपना ये ब्रदर भी बहुत हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सब ब्रदर बहन सुनंदा सिस्टर आगे आगे सब उत्सुक है सब लोग, इसलिए ऐसे ही रहो बस। परमेश्वर को यही विनती करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का कोटि कोटि।
जिससे मैं बहुत एनकरेज हो गई। और एक चीज है कि मैं कैंप से आई थी तब से परमेश्वर मुझे बोल रहे थे कि ये बात तू शेयर कर, बट मैं ये चीज शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे। एक चीज है जो जब लास्ट डे था अपना कैंप का और अनाउंसमेंट किया गया था बस को लेकर कि बस 1:30 को छूट जाएगा, और मुझे किसी ने ये बताया कि 2:30 का टाइमिंग है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:25 हो गया था, तो उसमें हम लंच करके कभी निकलेंगे, बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर मेरे को लगा कि मैं आगे जाके बोलूं, तो उन्होंने बोला आगे जाके बोलो, तो मैंने आगे जाके बोल दिया कि 2:30 का टाइमिंग है, और वहां पे वो अनाउंसमेंट हो गया 2:30 का। और जैसे ही फिर मैं वो बोल के बाहर निकल के आ गई, और थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि तुमको किसने बोला 2:30 का टाइमिंग था, 1:30 का टाइमिंग हमको अनाउंस करने का था। तो बाद में बट उन्होंने मुझे ये एनकरेज किया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बोल दिया, अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो करके। और फिर सेम चीज मैथ्यू अंकल आए, उनको भी मैंने जाके बोला कि अंकल मुझे पता नहीं था, और मैंने ऐसे जाके बोल दिया। वहां पर मैंने एक चीज किया कि मैंने कोई 2 ब्रदर्स के नाम लिए कि मुझे इन्होंने बोला और मैं जाके आगे बोली। तो तभी मुझे एक कन्विक्शन हो गया कि मैं ये ईव की तरह काम कर रही हूँ, कि जब भी मतलब मैं एक दूसरे पे दोष लगा रही हूँ कि इसने बोला तो मैंने जाके कर दिया, इसने बोला तो मैंने जाके कर दिया, बट परमेश्वर मुझे बोल रहा था कि इसमें तेरी गलती है। हवा का क्या काम था, ईव का क्या काम था कि उसको उसके हस्बैंड के साथ कंसल्ट करना चाहिए था। तो मैं एक यूथ लोगों को भी एनकरेज करना चाहती हूँ कि शादी से पहले आपके पेरेंट्स को हर एक छोटी छोटी बात को लेके कंसल्ट करो, पूछो उनसे, और आफ्टर मैरिज आपके हस्बैंड से पूछो, आप ये चीज आपके हस्बैंड के सबमिट रह जाओ। और एक चीज बताना चाहूंगी कि इवन हस्बैंड है या ये पेरेंट्स है, बट उससे पहले हमको अगर वो नहीं है तो हमारे चर्च के एल्डर को वो चीज पूछो। और मैंने देखा कि उस टाइम पर मेरे पास कोई भी नहीं था, ना चर्च के एल्डर थे और ना ही मेरे हस्बैंड थे, और मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे पूछूं, मैंने जाके बोल दिया। और उस चीज को लेके मैं अपने आप को कंडेम फील कर रही थी कि यार मेरे वजह से इतने लोग स्ट्रगल करेंगे। इवन एक फैमिली था कि जो उनका बड़ौदा जाने का बस था, बड़ौदा जाने का ट्रेन था, तो मेरे को लगा कि यार मेरे वजह से वो लोग लेट हो जाएंगे। तो मैं अपने आप को कंडेम कर रही थी कि प्रभु क्या करूंगी। मुझे लारा आंटी भी पूछे थे क्या हो गया सुनंदा, थक गई क्या बहुत, बट मैं अंदर ही अंदर ये चीज सोच रही थी और परमेश्वर से बात कर रही थी। और रियली परमेश्वर भला है, जैसे वचन में लिखा है कि जैसे आज ब्रदर ये जोसेफ ब्रदर ने शेयर किया साम 37 का 24, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तो मैंने देखा कि मैंने अपने दिमाग में सब आइडिया लगा ली कि मैं क्या करूंगी, जैसे टाइम हो जाएगा ना सबको बुला के फटाफट फटाफट बस में बिठा दूंगी, मेरे वजह से लेट नहीं होना चाहिए, फटाक से हम निकल जाएंगे। बट परमेश्वर इतना भला है कि उसने बस को ही लेट कर दिया 1.5 घंटा 2 घंटा, और मैं अंदर इतनी खुश हो गई कि प्रभु मेरे वजह से लेट नहीं हो गया, ये बस ही लेट हो गया। तो मैं मतलब मैं परमेश्वर का इतना तहे दिल से धन्यवाद करने लगी, प्रभु आई रियली थैंक गॉड। चाहे और लोगों को थोड़ा स्ट्रगल होने लगा, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि परमेश्वर की योजना सबसे बेस्ट योजना है। मैं सोच रही थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी ऐसा करूंगी, बट परमेश्वर का योजना देखो कि वो सिर्फ सुनंदा के लिए, कि सुनंदा अपने आप को कंडेम फील ना करे, वो अपने आप को दोष न लगाए इस चीज को लेकर। उसने बस को इतना लेट कर दिया कि मेरे अंदर वो जॉय आ गया चाहे लेट हो गया। तो आई रियली थैंक गॉड कि हमको हमेशा परमेश्वर पर एक छोटी छोटी बात को लेकर उस पर भरोसा करना है। वो सच में विश्वास योग्य है, अगर हम अपने आप को उसको सरेंडर करेंगे, वो विश्वास योग्य है उसकी तरीके से रास्ता तैयार करने के लिए। प्रेज गॉड। I thank God for the very encouraging word that I heard today from Brother Kiran, and मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि भाई किरण के द्वारा बहुत ही प्रोत्साहन भरे वचन आज मैंने सुने। and you know, the Lord is a Lord who keeps His promises. और परमेश्वर वो है जो उनके प्रतिज्ञाओं को वादों को वो निभाते हैं। And I have seen in my own life that the Lord keeps His promises no matter what happens. मैंने भी अपने जीवन में इस बात को पाया है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है। And I was reminded of this verse from Psalm chapter 119 and verse 74. और भजन संहिता 119 और उसका वचन 74 मुझे स्मरण आता है। May those who fear thee see me and be glad, because I wait for thy word. भजन संहिता 119 वचन 74।
Yeah. तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। Yeah, so here it says that I wait for thy word. और यहाँ पर वचन कहता है कि क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। So I was just thinking that how the Lord wants us to wait to hear from him. और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी बात जो है कि वो हमसे कुछ वचन कहेंगे। Like what Brother Kiran was sharing, that how God gave his promises, but he waited for so long that Abraham's and Sarah's womb were dead. और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं भाई किरण ने कैसा बताया कि अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, उससे वादा किया था, लेकिन कई वर्षों तक वह उसका इंतजार करते हैं, बाट जो होते हैं कि जब तक सारा का जो शरीर है वह मरे हुए से ना हो जाए। But because he had faith in God's word, God fulfilled his promises. लेकिन क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर, उसके प्रतिज्ञा पर था, इस कारण वह प्रतिज्ञा उसके लिए पूरी हुई। God is one who gives us hope in hopeless situations. परमेश्वर हमारा वह परमेश्वर है जो हमारे आशाहीन परिस्थिति में हमें आशा देते हैं। And Isaiah chapter 61 and verse 3. और यशायाह नबी अध्याय 61 वचन 3। It says to grant those who mourn in Zion, giving them a garland instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the mantle of praise instead of a spirit of fainting. So they will be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. यशायाह अध्याय 61 वचन 3। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो, और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। So we see that God is a God who turns ashes into something of beauty. और यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि प्रभु राख को एक सुंदर वस्तु में बदल देता है। Yes, God is a God who gives hope in hopeless situations. और परमेश्वर वह परमेश्वर है जो हमारे आशाहीन परिस्थिति में आशा देते हैं। How can ashes be anything of beauty? और कैसे एक राख जो होती है वह किसी भी तरह की एक सुंदर वस्तु बन सकती है। But God is a God who gives beauty for ashes. लेकिन परमेश्वर वह परमेश्वर है जो राख को भी एक सुंदरता देता है। Yes, this is the God we believe in. और यह वह परमेश्वर है जिसमें हम विश्वास करते हैं। That is what really encouraged me from what brother shared. और यह वह बात है जो मुझे, जो भाई ने बांटी हमारे बीच, उसके द्वारा मुझे प्रोत्साहन He's a देती है। God of impossibilities. और हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। He's one who gives beauty for ashes. और वह परमेश्वर राख को भी सुंदरता देता है। The oil of joy for mourning. और वह एक हर्ष का तेल जो शोक मनाते हैं उनके लिए देता है। Yes, we may be mourning today, हो सकता है आज हम शोक मना रहे हो, but God will clothe us with his righteousness, his beauty, लेकिन प्रभु हमें उसकी धार्मिकता, उसकी सुंदरता से वह ओढ़ना ओढ़ाएंगे, and we will rejoice in him. और हम उसमें आनंदित होंगे। Yes, I thank God for his word and for all his promises that he has kept for us. अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हूँ उन सारी प्रतिज्ञाओं के लिए जो उन्होंने हमारे लिए रखी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमें शैतान हमेशा रुकाने की कोशिश करता है। कल लास्ट संडे भी मैं सब तैयारी किया था चर्च में जाने के लिए, फिर मुझे अचानक वॉमिटिंग हुआ और फीवर आया और चक्कर जैसा आ गया। फिर मैं घर नहीं जा पाई चर्च में। फिर मैंने यही देखा कि शैतान कैसे हमें हमेशा रोकने की कोशिश करता है परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। तो उसके लिए बाइबल कहती है कि अगले दिन ही तैयारी करने का है। तो मैंने कल देखा कि कल मैं काम पे गई और सुबह काम पे जाके अच्छे से काम किया। फिर शाम को लौटते समय मैं स्टेशन आई। स्टेशन पे इतनी बुरी तरह से मैं गिर गई फिसल के कि कितने लोग मुझे उठाया, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। मेरे 2 टांगे ऐसे हो गए थे, पूरा मेरा ये
बहुत तकलीफ हुआ मुझे। आधा घंटा मैं उधर बैठी थी और 45 मिनट्स तक मुझे हिलने नहीं हो रहा था। फिर मैं वहां पे बहुत रोया, प्रभु आप चाहते तो मुझे उस गिरने से बचा सकते थे। बहुत रोया, मैंने बहुत रोया। और प्रभु मुझे अब लोगों ने पूछा कि आपका कोई है क्या, आपको बुलाने का है क्या उनको। मैंने नहीं बोला उनको। मैं 45 मिनट्स वहाँ स्टेशन पे बैठी और बैठने के बाद एक लड़की ने मुझे ट्रेन में बिठाया, विराट ट्रेन में। ट्रेन में भी मैंने इतना रोया, इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द सहने से बाहर था। मैंने सिर्फ रोया, मैंने कुछ नहीं बोला, पर प्रभु से सिर्फ रो रही थी। और धीरे धीरे मुझे ट्रेन में से उतारा गया और वहां से मैं धीरे धीरे जाके रिक्शा में बैठ के घर पहुंची। जब मैं ट्रेन से उतरी तो थोड़ा सा दर्द कम हो गया और उसके बाद मैं घर गई। जाके मैं खाना खा के फिर रात को मैंने प्रेयर करके सोया। प्रभु मैं लास्ट संडे भी आपका भवन में नहीं जा पाई, मुझे ये संडे जाना है, मुझे कैसे भी करके आप मुझे हेल्प कीजिए। मैंने ऐसे उनको पुकारा, प्रभु सिर्फ मैं आप पे भरोसा रखती हूँ, आपको सहारा मानकर मेरा और इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो सिर्फ आपकी सामर्थ्य से, आपकी शक्ति से मैं जीती हूँ। मैं अपनी शक्ति अपना सामर्थ्य नहीं दिखाती है। प्रभु को मैं प्रार्थना किया, प्रभु कैसे भी करके मुझे चंगा कीजिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ तक आने के लिए और 3rd फ्लोर चलने के लिए सहायता किया। अभी मुझे और भी ज्यादा तकलीफ है, लेकिन फिर भी मैं आई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जैसे वचन सुना कि हम गिरते हैं तो उधर ही बैठे नहीं रहते, प्रभु ने हमें उठाता है। हम निर्णय करते हैं कि हम अगर मैं वहां से उठकर घर नहीं जाती तो शायद मैं ठीक नहीं हो पाती थी और वैसे नहीं बैठे रहती थी वहां पे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो आज के वचन के लिए